بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے اور یہ گزشتہ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، اس کا دوسرا حصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن اعتقادی، عملی اور معاشرتی بے راہ رویوں سے روکا، یقیناً وہ انسان کے لیے نقصان دہ تھیں، اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ صراط مستقیم کے جن معتدل خطوط پر چلنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حکم دیا، وہ یقیناً انفرادی، اجتماعی، ملی طور پر خیر کا باعث ہیں اور خیر کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان پر چلنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے شریعت اسلامیہ ہی کو درست قرار دے کر اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ دیگر راستوں سے امت کو منع کیا گیا۔ آسان اور عام فہم انداز میں ہم اسے یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ اسلامی اعتقادات، معاملات، طور طریقوں اور اصولوں پر جمے رہو، اور غیر مسلم اقوام کے اعتقادات، ان کے رسوم و رواجات، ان کی خرافات، ان کے اختراعات سے مکمل بچو، ورنہ یہ چیزیں تمہیں اپنے رب سے بہت دور کر دیں گی۔ اسلام ہی کامل و مکمل، جامع اور ناقابل تبدیل دستور العمل ہونے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ دنیا، آخرت، زندگی، موت اور فوز و فلاح کے تمام شعبے اس کے وسیع دائرے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اسلام نے اقوام عالم میں ایک الگ شناخت پیدا کی اور ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ جب تک ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، ورنہ اہل تاریخ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں وہ اپنے وجود اور بقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر فعل، ہر قول شریعت اسلامیہ کی خوشبو سے مہکتا ہونا چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی رسومات کی گندگی میں لتھڑا ہوا ہو۔ شیطان کو قرآن پاک نے تمہارا کھلم کھلا دشمن کہا ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انسان کا سب سے قدیم، شاطر، چالاک، عیار، مکار، ان سب سے بڑھ کر خطرناک اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ترین دشمن شیطان ہے، اور اس کو ہر اس کام پر ابھارتا ہے جو عقلی و حسی اور شرعی طور پر برا اور فاحش ہو۔ ان بے شمار کاموں میں ایک ایسا کام بھی ہے جو غیر اسلامی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے اور غیر فطری بھی ہے، اور وہ ہے غیر اخلاقی اظہار محبت کرنا، جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ دن بےہودگی اور بے حیائی کی انتہا پر پہنچ کر ہی منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، تو وہ وہاں سے جا کے دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کو کیوں مناتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں ہر سال 14 فروری کو جنسیت زدہ غیر مسلم اقوام ناجائز خواہشات کی تسکین و تکمیل کے لیے اسے منانے کا اہتمام کرتے تھے، قطع نظر اس سے کہ ان داستانوں میں کہاں تک حقیقت پائی جاتی ہے۔ ہم اس غیر ضروری بحث میں الجھے بغیر اس کے چند معاشرتی اور شرعی مفاسد پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں بہت زیادہ بے حیائی پائی جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور ان میں ایک عظیم شعبہ حیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے اور دین اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ایک فاحش تہوار ہے اور فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کی قرآن کریم میں بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی و بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں انتہائی دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی تمام ایمانیات اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے، اس لیے کہ ان کی تنہائی میں تیسرا شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
इरशाद फरमाया कि तुम लोग ऐसी खवातीन के घरों में ना जाओ जिनके शौहर इस वक्त घर में ना हो, इसलिए कि शैतान तुम में खून की तरह गर्दिश करता है। वैलेंटाइन डे गैर इस्लामी त्यौहार है और गैर मुस्लिमों की नक्काली है, और गैर मुस्लिमों की नक्काली करना ये इस्लाम के अंदर हराम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो इन्हीं में से है, क़यामत के दिन वो इन्हीं में से उठाया जाएगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स गैरों की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबहत इख्तियार ना करो। वैलेंटाइन डे से जो मामलात होते हैं उससे दिल में दीवानगी और इश्क मजाजी जन्म लेता है, जिसका नतीजा जिना की सूरत में फिर बाद में जाहिर होता है, और जो चीज़ हराम का जरिया बने वो खुद भी हराम है। इसलिए यह दिन मनाना, यह त्यौहार मनाना हराम है। और हया के बारे में एक और हदीस मुबारक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सुन ले, ये बड़े गौर से सुनने की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक जब किसी शख्स को हलाक करना चाहें तो इसे हया से महरूम कर देते हैं। जब इससे हया छिन जाती है तो वो नापसंदीदा और काबिल नफरत हो जाता है। जब वो नापसंदीदा और काबिल नफरत हो जाता है तो इसे अमानतदारी से महरूम कर दिया जाता है, और जब वो अमानतदारी से महरूम हो जाता है तो वो खाइन और खयानतदार मशहूर हो जाता है, और जब वो खाइन और खयानतदार मशहूर हो जाता है तो इससे रहम दिली छिन जाती है। जब इससे रहम दिली छिन जाती है तो वो मलऊन और काबिल लानत हो जाता है, लोग इस पर लानतें भेजते रहते हैं, और जब वो मलऊन और काबिल लानत बन जाए तो इसकी गर्दन से इस्लाम का हार उतर जाता है। तो ये सारी बातें, ये सारी लानतें और ये सारे तौक सिर्फ और सिर्फ हया के चले जाने की वजह से एक मुसलमान के, एक इंसान के गले में पड़ जाते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स गैर मुस्लिमों की नक्काली में नौरोज और महरजान, ये गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ इसको मनाता है और आखिर उम्र तक इसको मनाता रहता है और किसी तौर इसको दुरुस्त भी समझता रहता है, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है, तो क़यामत के दिन उसको गैर मुस्लिमों के साथ ही उठाया जाएगा। सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव अपनी किताब पेरेस्ट्रोइका में लिखते हैं कि हमारी मगरिब की सोसाइटी में औरत को घर से बाहर निकाला गया, और इसको घर से बाहर निकालने के नतीजे में हमने चंद मुआशी फवायद हासिल किए और पैदावार में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। वो इजाफा इसलिए हुआ कि मर्दों के साथ औरतें भी काम करने लग गईं, काम बढ़ा, काम ज्यादा होने लगा, तो उससे मुआशी फवायद भी हासिल होने लगे। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह होकर रह गया, और जो फैमिली सिस्टम के तबाह होने के नतीजे में हमें नुकसानात उठाना पड़े हैं, वो नुकसानात ऐसे हैं जो उन मुआशी फवायद से कहीं ज़्यादा हैं जो हमें प्रोडक्शन के इजाफे के नतीजे में हासिल हुए हैं। लिहाजा मैं अपने मुल्क में एक तहरीक चला रहा हूँ जिसका नाम पेरेस्ट्रोइका है। इस तहरीक में मेरा एक बुनियादी मकसद ये है कि वो औरत जो घर से निकल चुकी है इसको घर में कैसे वापस लाया जाए, इसके तरीके सोचने पड़ेंगे, इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना जिस तरह हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हुआ जा रहा है इसी तरह हमारी कौम भी एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएगी। वैलेंटाइन डे के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हर किसी ने अपने अपने जिम्मा समझ कर इनको करना है, और उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है औलाद के लिए कि अपनी औलाद को हया की तालीम दे, इनकी निगरानी करें, किसी गैर महरम से मिलने ना जाएं, इनको रोकें। अगर कहीं तालीम या रोजगार के सिलसिले में दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में रहते हों तो वहाँ पे उनके साथ राबता करके उनको समझाया जाए कि अपने ख़ानदान की इज्जत और उनकी आबरू को तबाह होने से बचाएं, और वैलेंटाइन डे के दिन अपने घर के अंदर, हॉस्टल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जहां भी वो पढ़ते हों, मुलाजमत करते हों, सिर्फ वहां पे रहें। और अहले इल्म की इसमें यह जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हया, पाक दामनी, इज्जत व नामोस, इफ़्फ़त व इस्मत और पर्दा व हिजाब के फ़वाइद लोगों को बताएं, और बेहयाई, फहाशी और यानी जिनसी आज़ादी और मगरबी कल्चर के बारे में, गैर इस्लामी कल्चर और तहजीब के नुकसानात जो के बेपर्दगी की वजह से हमारे मुआशरे में रूनमा हो रहे हैं, उन पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। और मीडिया की जिम्मेदारी ये है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी है, वो भी अपना मुस्बत किरदार अदा करें, और बेहयाई के मनफी नताइज और असरात से नौजवान नस्ल को एक मुहिम के तहत आगाह किया जाए।
सोशल मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं वो इस्लामी तहजीब का प्रचार करें और गैर इस्लामी त्यौहार, गैर मुस्लिमों की मुशाबहत के नुकसान को खूब आम करें। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि इस दिन पार्कों, होटलों और फूलों वाली दुकानों पर खास कड़ी निगरानी रखी जाए और इसके लिए सख्त इकदाम किए जाएं कि अगर कोई इस तरह का जोड़ा मिल जाए जो बेहयाई और फहाशी में मुब्तला हो, गैरों की नकाली करते हुए इस दिन को मना रहा हो, अगर ऐसा कोई नजर आ जाए तो इसे सख्त सजा दी जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस बेराह रवी से बच सके, इसका शिकार होने से महफूज रहे। याद रखें कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और तमाम जिम्मेदारान इखलाकियात के दुश्मन इन तफरीही तमाशों से यूं ही सरफे नजर करते रहे तो आज मगरिब जिस सूरत हाल से दो चार है, वतन अजीज हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में भी इसी सूरत हाल को पैदा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी और ना कोई इसको रोक सकता है। हमारी आबादी की अक्सरियत इस आग की तपिश से अभी महफूज है। अभी वक्त है कि आगे बढ़कर इन चंद झाड़ियों को जो इस आग की लपेट में आ चुकी हैं, इनको जल्दी जल्दी बुझा ले ताकि ये आग आगे ना बढ़ सके। खुलासा पूरी बात का ये है कि जिन लोगों के हम त्यौहार मना रहे हैं वो खुद किसी मसीहा के मुंतजिर हैं और खुद अपनी जिंदगियों से परेशान हैं। हमारी नौजवान नस्ल उनकी तहजीब की तकलीद करके किस तरह कामयाबी हासिल कर सकती है? हाँ, अब वक्त है कि मुसलमान अहले मगरिब को ये बताएं कि तुम्हारा मतलूब कुरान और हदीस में मुज़मर है। जिस चीज़ को तुम चाहते हो वो हमारे पास है, हमारे इस्लाम में है, हमारी शरीयत में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। खुद इनका इत्तिबा करने की बजाय इनको इस्लामी तहजीब की दावत दें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथ।